Can I request Mr. Sushant Mohan, Digital Editor, Zee Media, to please come forward and present this memento to Professor Sahasrabudhe for his presence. Many thanks to our guest of honor for his presence. That's Professor Anil Sahasrabudhe, Chairman AICTE. Thank you, sir. Moving on to our panel discussion, I think I have the opportunity to thank our partners, our presenting partner, Amrita University. We are co-powered by Intel, our special partner, Purple Microport, our recharge partner, Paytm, our mobile partner, Infinix, and our digital distribution partner, Daily Hunt. We're now all set for the first panel discussion of the day. Ladies and gentlemen, gives me immense happiness to invite our speakers, our esteemed set of panelists on stage. Please give it up for Bani Venthal Dhawan, Head of Education, India and South Asia, Google Cloud India Private Limited. Everybody, Miss Bani on stage for you. Thank you so much for joining us. Mr. Himanshu Rai, Director, IIM Indore. Can we welcome Mr. Himanshu with a big round of applause? Ms. Divya Arora, ex-National Director, AFS Intercultural Program, India. Big round of applause for Ms. Divya Arora. And the session shall be moderated by Mr. Sushant Mohan, Digital Editor, Zee Media. Excited to hear this conversation. Hello, check, 1, 2, 3. Thank you for coming here. Thank you for your time. And आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना समय दिया और आप लोग हमारे साथ यहाँ सुबह से बने हुए हैं, तो उसके लिए एक बार एक जोरदार ताली आप लोग अपने लिए भी अगर बजा लें तो बहुत बेहतर होगा. So again, welcome. मैं बहुत ही नर्वस था जब मैं सुबह यहाँ पर आया और मुझे लगा कि ये जो कॉन्वर्सेशन हमें करनी है क्या है कि पढ़ाई के बारे में बातें और पढ़ाई के बारे में बातें यूजुअली जब हम जी न्यूज़ पे डिबेट करते हैं और बहस करते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई छोड़ के सारी बातें होती हैं. बट आई एम ग्लैड दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. एजुफ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड्स हमारी एक कोशिश है उन सभी प्रयासों को, उन सभी कोशिशों को रिकग्निशन देने की जिनमें आपकी, हमारी, अभिभावकों की, स्टूडेंट्स की मेहनत लगती है और एक बहुत बड़ी टीम ने इसे अंजाम दिया है. यहाँ पर वो पूरी टीम बैठी है. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें यहाँ लेकर आए. ज़ोरदार तालियाँ एक बार उस टीम के लिए जिन्होंने इसे संभव बनाया. मैं यहीं से शुरू करता हूँ क्योंकि कहते हैं कि गूगल सब जानता है और जब आप हमारे साथ यहाँ पर बैठी हैं बानी, गूगल क्लाउड की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें कि हमें इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लेकर जाना है, आजकल सारी दुनिया वर्चुअल पढ़ाई की तरफ जा रही है. मैं जब आप लोगों के प्रोफाइल देख रहा था, आदत होती है पहले आने से पहले देखने की, तो वो भी मैंने वर्चुअली देखे. आप किस तरह से देखते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल हब बन रहा है? इंडिया के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं. क्या आप ये देखते हैं जब आप गूगल के तौर पे देखते हैं, जब आप एक कंपनी के तौर पे देखते हैं और एक इंडिविजुअल के तौर पे देखते हैं? Thank you for having me here. Bilkul. Not only now, I think it's very obvious that India has been in the forefront of a lot of innovation. If you look inside Google, you will find a lot of Indian origin, folks, including our CEO, Sundar Pichai. So obviously we are proud of our heritage and where we come from and where we have and what we've achieved. Having said that, मुझे यही लगता है कि कोविड एक हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या दे रहा है जहाँ पे हम अपने आप को रीइमेजिन कर सकते हैं. एंड किस हद तक हम रीइमेजिन कर सकते हैं कि कैसे हम इक्विटी भी कर सकें, इक्विटेबल लर्निंग एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकें और क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड कर सकें, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ओल्ड थॉट्स को चेंज करके न्यू थॉट्स इंट्रोड्यूस किए जाए.
digital के माध्यम से या फिर what we are used to in terms of upgrading our curriculum, what we are trying to do in terms of NEP, the blended learning approach, etc. So I think what we need to focus on is, let's make the best of this opportunity to not only rethink, reimagine, but innovate. Future is here. It's not about looking into the future. Future is here, and it has been expedited by almost 5 years in terms of computing. So whatever we experience going forward is going to be very, very disruptive, very, very innovative, and we need to be in the forefront for that. I'll come to the innovative and innovation part later in this conversation, because that's where I have my few questions also. Himanshu ji, जब हम बात करते हैं innovations की और हम बात करते हैं future is here, क्या आप भी ये मानते हैं future is here and Indian education का जो top है, peak है, वो यहाँ पर है? So not just the future is here is coming out from our country, but the rest of the world is saying that. So I'll give you 2 very quick examples. 3 weeks back, I was at the University of Denver. I was giving the keynote at their internationalization week. और वहाँ पे जो सबसे पहली बात उन्होंने बोली, उन्होंने ये बोला कि इंडिया को पहले हम लोग सिर्फ एक मार्केट की तरह देखते थे, लेकिन अब हम इंडिया को एक रिसोर्स की तरह देख रहे हैं. So not just consumers, but they are looking at India for talent. And what they said, अभी अंग्रेजी की भी बात हो रही थी. I don't know how many of you know this statistic, but India has the highest English-speaking population in the world. And that, of course, is because we speak a lot of languages, so on and so forth. And therefore, पूरा विश्व अभी ये बोल रहा है कि हम इंडिया को as a resource देख रहे हैं, हमको यहाँ से talent लेकर के जाना है. So ये पहला. दूसरा, अभी एक हायर एजुकेशन फाउंडेशन की मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में अपना एम्बेसी ऑफ इंडिया के साथ, और वहाँ पे जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके कम से कम 15 प्रेसिडेंट्स आए थे, प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट यूएस यूनिवर्सिटीज़, ऑल ऑफ देम ऑफ इंडियन ओरिजिन. एंड वंस अगेन दे सेड दैट द फ्यूचर इज़ हियर. अभी जो भी होगा आगे वो इंडिया से होगा, और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस में हमको बाहर से सीखना है. अभी ग्लोबल प्रैक्टिसेस लोग हमारे से सीखने आ रहे हैं. 2 चीज़ों का मैं बहुत क्विक एग्जांपल दूंगा. नंबर 1, फ्रूगल इनोवेशन, जिसको हमारे यहाँ थोड़ा हे दृष्टि से देख करके हम लोग जुगाड़ बोलते हैं, पूरी दुनिया भी बोल रही है कि इट्स फ्रूगल इनोवेशन, और हमको ये फ्रूगल इनोवेशन भी सीखना है भारत में आकर के. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे टॉक अबाउट. एंड द सेकंड थिंग दैट दे टॉक अबाउट, दैट आई गेव देम अ स्टैटिस्टिक दैट India has 833 million people who live in rural areas. 833 million people. Just wrap your heads around that. Why? Because that is more than the population of the United States and Europe combined. And what they are saying is कि बहुत सारा जो frugal innovation होता है, जो grassroots innovation होता है, वो यहाँ से आता है, इंडिया के गांवों से उठ के आता है. एंड देयरफॉर मैंने उनको ये बोला है कि आगे से मैं स्टडी इन इंडिया की बात नहीं करूंगा आपके सामने, आगे से मैं बात करूंगा स्टडी इंडिया. आप हमको पढ़िए, और जब आप हमको पढ़ेंगे तो आपको भी हमारे विषय में अधिक समझ में आएगा, और हमको भी अच्छा समझ में आएगा कि आप हमें कैसे देखते हैं. सो क्लियरली द फ्यूचर इज हियर. आपने बड़ा अच्छा टर्म दे दिया, फ्रूगल, क्योंकि जब फ्रूगल इनोवेशन की जब बात हुई तो वो जुगाड़ ऑटोमेटिकली हो जाता है. और आपने कहा कि हमारे भारत में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये बड़ी डिफ़िकल्ट बात होती है. मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन वी वर आस्किंग, की चीज़ सामने आ रही थी कि लोगों को अपनी भाषा में सीखना है. मैं बहुत खुश हुआ था जब सर ने कहा कि हम PDF को अब कन्वर्ट कर सकते हैं 12 भाषाओं में. क्या ये चैलेंज नहीं होता है, दिव्या जी अगर आप बताएं, क्या ये चैलेंज नहीं होता है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो इंग्लिश भले ही बोलने वाले ज़्यादा हैं पर उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है आगे आने में? I think difficulty is more presence of mind. आपको लगता है difficult है, अगर आप चाहो आप कुछ भी कर सकते हो. And I think Anil sir started very nicely when he said that education जो इंडिया ने base बनाया है, अब हम innovation करके इतने ऊपर आए हैं. We were one of the beginners who started the education system. So I think definitely we need
the resources जी. that can help us. And I think one concept that I really like nowadays, जो हम at least AFS में बहुत use कर रहे हैं, collaboration and not competition. You know, that's very, very important. पहले हम non-government organization है, तो ये हमारा काम है, government organization का ये काम है, corporate का ये है. But now if we can really combine our resources, like what again, I'll go back to what Sir was saying, you know, there's so many innovations, so many projects that have started, but very few people are really aware of it. और अगर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, and I coming from a organization जो mainstream है, I would say academics में नहीं है, but value added है. I would say is today we have to pay a lot of attention to the value added. We have to. अगर हम रूरल की बात कर रहे थे, सर जैसे बोल रहे थे इतनी पॉपुलेशन है, but there are so many examples जिनको इंग्लिश नहीं आती है और बहुत वीक इंग्लिश है, but given an opportunity in our own organization, they have gone on scholarships and done brilliantly. You know, that confidence has to be given. I know I've worked in a school, गांधीनगर के पास एक गांव है, वहाँ की प्रिंसिपल के साथ हमने काम किया 2 साल. उनका स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, बट द इनोवेशन शी डिड वाज हर एक जैसे ये स्टेप्स हैं या ये वॉल्स हैं, उन्होंने छोटे छोटे उन्होंने आइडियाज़ लिखे हुए हैं. I can do it, I am positive, you know, some very simple English, which the students जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या भाग रहे हैं या खेल रहे हैं, वो inspire हो रहे हैं. So I think those are very, very important things, and we should definitely equip the students to become more confident and be exposed to all these kind of innovations. That's a good innovation, but अब innovation की जब बात आती है, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं. Innovation जब पूछते हैं, हमारे bosses ऑफिस में पूछते हैं क्या innovate करोगे, तो पहले हम Google करते हैं, उसके बाद innovate करते हैं. तो जब हम Google की बात करते हैं, तो वो किस तरह के innovation है जो आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ले जाने के लिए अगर हमें वहाँ लेके जाना है, तो आप वहाँ पर गूगल की तरफ से कोई ऐसा इनोवेशन या कोई ऐसी वैल्यू ऐड हो रही है, बानी? Absolutely. So at various levels, you know, we are innovating. In fact, we have engineering teams, product teams that are based out of India, business teams that are based out of India. But if I was to say foundationally, what does technology enable? I would say technology enables the platforms that are interoperable and open and are providing user choices so that innovation can happen. Okay. Now, we believe as Google, that's the foundation. What you make of these platforms, technology platforms, and the power these platforms provide is what is going to be innovative, and we have to keep the user in mind. So, आपने बात की कि we want to learn in our own language. अगर हमें अपने language में पढ़ना है, then we have to make tools, products that actually make each of our language speaker self-sufficient, self-reliant, and have that kind of access to both content as well as these tools and technologies. So, simplifying those technologies, providing it to the users in the most scalable, in the most affordable manner is what we are innovating on. So I would say we have to think foundationally. Again, going back to my point, this kind of opportunity does not come in life very often, where you have to reinvent and rebuild some of what we have done in the past. Mm-hmm. So from a Google perspective, we have Google Cloud, we have Google Workspace for education, we have innovated a lot on Google Classroom. I'm proud to say that a lot of higher education institutions are using Google Classroom as a learning management solution. Right. And we know that we probably are on top of the world in terms of how simple it is, how useful it is for Indian ecosystem. So those are the small innovations that we are proud of. We are proud of GPay that was built out of India and now has become a Google product, global product. We are proud of the kind of growth we are seeing on YouTube, on Android. So the simplification and the scalability and user-first attitude is what we really want to innovate on. But you know what global is, and according to Indian standards for global, people say that bahar jaake padhna hai. That's a problem we have. Brain drain is a real problem. I wanted to ask this to Dharmendra ji also, and this is
one problem we all are facing. All the students we see, they come to us, they want to learn something, but they want to fly abroad. How to tackle this problem? Why cannot we become, India can become a superpower? Maybe in 5 years or 4 years? What is there? What problems do we have? Himanshu. You know, it's purely a problem of numbers. So it's not a problem. ये एक fact है. ये एक fact है. यदि मैं उदाहरण दूं कि 2 लाख लोग कैट लिखते हैं और हमारे सारे IIMs के पास मिलाकर के हमारे पास 5,000 सीट है. ये this is a fact. The good thing is that it is being addressed. One, now we have IIMs all across the country. We have 20 IIMs, we have 20 IITs. So the number of good educational institutions is going up. और दूसरा ये कि अभी हम लोग, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी आया है जो अनिल जी ने बताया भी, कि IIM और IITs के लोग अब दूसरे कॉलेजेस को भी हैंड होल्ड कर रहे हैं. उनको हम मेंटोर कर रहे हैं, उनके शिक्षकों को हम एजुकेट कर रहे हैं, हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं. सो दैट इज नंबर 1 दैट वी आर डूइंग. और उससे जब हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, इन दैट केस देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज. दैट इज 1. द सेकेंड इज, नाउ कोविड की वजह से एक और अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये हो गया है कि एजुकेशन हैज बिकम डेमोक्रेटाइज. इतने सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स अभी हम लोग कर रहे हैं. IIM इंदौर में उदाहरण के तौर पे हम 5 गुना प्रोग्राम्स कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के क्षेत्र में, जो हम 2019 में करते थे उससे 5 गुना. एंड देयरफॉर वी आर रीचिंग आउट टू मोर पीपल. और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो थर्ड चीज़ हम लोग कर रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, और वो गूगल से संबंधित है. आप किसी भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखिए तो वो बोलते थे हमारा मिशन इज़ टू क्रिएट एंड डिसेमिनेट नॉलेज. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम सेइंग इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन ऑटोडायडेक्टिक वर्ल्ड. इन अ सेंस अब लोग चूज करेंगे, स्टूडेंट चूज करेंगे वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है. और इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हमको एक और शब्द ऐड करना होगा, क्यूरेट नॉलेज. क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आप गूगल के पास जाते हैं. गूगल अभी विद्या और अविद्या में भेद करने लगा है, पहले नहीं करता था. हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अविद्या विद्या का कम होना नहीं है, अविद्या कुछ और है. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. यदि 10 साल पहले आप गूगल पे टाइप करते सुसाइड करने के 10 तरीके, तो जो पहले 10 रिजल्ट्स आते वो आपको बताते कि पेनफुल से लेकर के पेनलेस तक, ये इस चीज़ से लेकर के उस चीज़ तक, कैसे आप अच्छे से अच्छे तरीके से सुसाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर अभी आप डालेंगे सुसाइड करने के तरीके, तो जो पहले 10-12 रिजल्ट्स आएंगे वो काउंसलर्स के नंबर्स आएंगे. नाउ दैट इज द चेंज दैट गूगल हैज मेड. और इसको बोलते हैं विद्या और अविद्या के बीच में भिन्नता करना, क्योंकि जो पहला है वो विद्या है, लेकिन अगर आप जो ये सब दे रहे हैं कि भाई ऐसे आप सुसाइड कर सकते हैं, वो अविद्या थी. तो जिसको अब क्यूरेट करके ठीक किया जा सकता है. और मेरे ख्याल से जब शैक्षिक संस्थान, उच्च शैक्षिक संस्थान इसमें भी लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो आप ब्रेन ड्रेन की, वैसे मैं ब्रेन ड्रेन उस शब्द को मानता नहीं हूँ, पर वो एक भिन्न चर्चा का विषय है. मुझे लगता है कि बहुत सारा ज्ञान हम यहीं रहते हुए इसी देश से, इसी भूमि से दे पाएंगे. बिल्कुल हिमांशु जी, आई थिंक गूगल इज़ ऑल्सो लर्निंग, एवरीबडी इज़ लर्निंग. लेकिन ब्रेन ड्रेन जो शब्द है वो क्यों महत्वपूर्ण है? जब हमने गूगल फॉर्म्स भरवाए, जब हमने सजेशन मांगे और हमने बताया लोगों को कि हम आपके साथ एजू फ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड्स के दौरान हम कॉन्वर्सेशन करेंगे एंड वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट टेकिंग द इंडियन एजुकेशन टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. लोगों ने एक ही बात कही, यूक्रेन में वॉर था, हमारे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे, हमने वहाँ से लगभग 600 लोगों को निकाला, कुछ को नहीं भी निकाल पाए, अनफॉर्चुनेट रहे. बात पॉलिटिकल स्तर पे तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन एजुकेशन के स्तर पे वो बच्चे वहाँ क्यों थे, वो यहाँ क्यों नहीं थे? हमारे यहाँ 74% लिटरेसी रेट है, लेकिन जब हम देखने जाते हैं, जब हम काम के स्किल के लेवल पर देखने जाते हैं, तो उतने लोग पढ़े लिखे नहीं मिलते. स्किल्ड लेबर मिल सकता है, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल बहुत कम मिलते हैं. तो ब्रेन ड्रेन की जहाँ पर समस्या है, क्या ये बात सही नहीं है? बच्चे काम से लेकर पढ़ाई तक बाहर जाने के लिए उतारू रहते हैं, ललायत रहते हैं. क्या ये सच नहीं है? मैं आप तीनों की राय इस पे जानना चाहूँगा.
I don't agree with the brain drain. हमारे पास I would say हमारे पास शायद opportunities इतनी ज़्यादा नहीं है जो हम अभी बच्चों को दे सकते हैं. So maybe that's the reason why बच्चों को लगता है कि बाहर जाकर हमारे को ज़्यादा opportunities मिल रही हैं. And I think I want to go back to the how do we stop it, I think, is having a great faculty. And again, going back to what again Anil sir was saying, teacher training is very, very important. You know, we really need teachers who can motivate the students. हम again coming from the organization where I work, AFS, हम internships programs करते हैं, offer करते हैं और community service programs offer करते हैं. हमारे बच्चे बाहर जाकर community service करना चाहेंगे rather than इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कहाँ करेंगे? इंडिया की NGO सिर्फ उनको पेपर फॉर्म या वो सर्वे के लिए भेज देगी, बट दे आर नॉट रियली गिविंग देम दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज. When we have these high school students who go on the scholarships, after school they get into sports. They have wood carpentry as a subject where they are learning wood carpentry. यहाँ पर हमारे पास अगर हम कभी कहें कारपेंट्री तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट एक ऐसा है कि हम सोचते नहीं कारपेंट्री कोई करेंगे, वो कोई स्किल नहीं है. So the once if we are able to really have a great faculty where we feel, where the teachers can actually tell the students के बच्चा this is something that is great, opportunities हैं, स्कूल साफ करो. I mean Japan schools में they clean the schools, the students clean the schools, you know, they don't have anybody else. हमारे में नहीं कर सकते, you know. So I feel if we are able to give that kind of opportunities to our students, educate them and have those teachers really motivate, again having a mentor, having a motivated teacher telling a 40% student or maybe a failure student कि बेटा कुछ नहीं होता, पढ़ाई में नहीं अच्छा बट तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, यू नो, यू हैव योर प्लान ABCDE, इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली द चाइल्ड वुड बी मोटिवेटेड टू ट्राई ऑन दोज थिंग्स rather than trying to look outside and going outside for the opportunities. Do you have any views on this? I actually always lean towards being optimistic and looking ahead. So I would say that what we've seen in the last 2 years is only opportunities. We've been able to sit anywhere in the world, learn anything in the world with any faculty or institute in the world. And so what I would think is we should work towards even more equalization like that. So again, I am of the opinion that there might have been, opportunities that India was not able to provide because of either limited, higher education institutions or just the sheer numbers that we had. But the future is going to be definitely more flat and equitable. And that's what we should work towards. That's what is required actually. Himanshu ji, you would like to add? Yeah, I'll just pick up that very excellent word that Bani used, and that is equitable. ये जब तक हम लोग इक्विटेबल की बात नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने वो जो स्टैटिस्टिक आपको बताई 833 मिलियन, अब उसमें हमारा क्या रोल है? वी हैव टू मूव फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्सपीरियंस एंड दैट इज एसेंशियल. अभी क्या होता है, हम एक्सपोज करते हैं स्टूडेंट्स को कि तुम ये प्रॉब्लम्स देखो, तुम ये प्रॉब्लम्स देखो, और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसका निस्तारण कर देंगे. एक्सपोजर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक देम एक्सपीरियंस. सो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, हमारे 600 के 600 स्टूडेंट मध्य प्रदेश के 106 गांवों में जाते हैं, 6-6 के ग्रुप्स में, और वहाँ पे एक हफ्ता रहते हैं. उसको पहले रूरल इमर्शन प्रोग्राम बोला जाता था, और उसमें क्या होता था कि वो लोग उसके बगल के शहर में रहते थे और एक हफ्ते के लिए जाते थे एंड एज टूरिस्ट, और उसके बाद उनसे डिस्कस करके चले आते थे. तो रूरल इमर्शन प्रोग्राम मेरे को 2 कारणों से नहीं पसंद था. पहले तो उसका एक्रोनिम RIP था, जो कि उचित एक्रोनिम नहीं है, और दूसरा ये कि मैंने बोला कि एक्सपोजर से नहीं होगा, लेट देम एक्सपीरियंस इट. तो अब वो लोग एक हफ्ते रहते हैं. जब वो रहते हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और जब उन प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करते हैं तब वो उसके जो सॉल्यूशंस बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, वो सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं. और मेरे ख्याल से यही भविष्य का मैं कॉन्वर्सेशन को इसी जगह पर लाना चाह रहा था. एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. बहुत ही छोटा सा क्रिएटिव हमने एक बनाया था, और उस क्रिएटिव में हमने ये महसूस किया जब हम जी न्यूज़ के लिए काम कर रहे थे. एक बच्चा है
जो एक एलिफेंट को देखता है एक एड में, और उस एलिफेंट को मैगजीन में देख रहा है वो, और उसको जूम करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो ये जब से वर्चुअल पढ़ाई आ गई है, वर्चुअल स्टडीज़ आ गई हैं, गूगल क्लासरूम्स आ गए हैं, ये सब इनोवेशन है, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी हमें स्कूल्स की ज़रूरत है और फिज़िकल एजुकेशन जो है, सामने बैठकर टीचर से सीखना, वो एक्सपीरियंस करना, वो ज़रूरी है? मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ क्योंकि 14 मिलियन के आसपास स्कूल्स हैं हमारे पास रजिस्टर्ड भारत में, लेकिन अब बच्चे वहाँ पर हैं नहीं। यहाँ पे कुछ टीचर्स भी बैठे हैं जो बच्चों को वीडियो उस पर पढ़ाते हैं, कैमरा पर। बच्चे कैमरा बंद करके पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कह नहीं सकते, बच्चे तो बच्चे हैं, भगवान का रूप होते हैं, पर टीचर नहीं होते, टीचर गुस्सा करते हैं। तो माय क्वेश्चन अगेन इज़, क्या ये जो वर्चुअल क्लासरूम्स आ गए हैं, क्या इसकी वजह से हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हिलता नहीं है, अफेक्ट नहीं होता? आपके व्यूज़। So I don't think it's about replacing a school system. It's never going to be like that. It shouldn't be like that. There is this social, emotional well-being that we experience. I think the future of education will lie more in terms of finding the ideal blend of hybrid and in classroom learning. I don't believe that we will not be in schools. I would want my children to go to school. I have 2 girls and I'm very happy when they're in school. And I can be working from home. So I think, experience has taught us that that is very, very important for the child's growth. And for higher education as well, to not only experience teamwork, but collaboration. But I think what we need to do as a culture is move away from being obsessed by being in classroom and face-to-face to actually accepting what it takes to actually collaborate in a more hybrid environment. So that change has to come in. And I would, use your example only कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि टीचर जब पढ़ा रही थी बच्चों को वो वीडियो ऑफ करके क्या कर रहे थे। हमें ये सोचना चाहिए एज ए टीचर मैं क्या कर सकती हूँ कि उसको वीडियो ऑन करके सिर्फ मेरा सुनना है और मेरी बात सुननी है। अगर वो चेंज आ जाएगा, शिफ्ट, सो हर बच्चा पढ़ना चाहेगा। आई नो माई गर्ल्स लव टू be with their teachers. So I think we need to distinguish where online will help and technology will help and where we need the human connect. It's very, very important. Amazing. No, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जिनका भी सवाल था टीचर जी का, थैंक यू गलत सवाल पूछने के लिए। प्लीज बताइए। So clearly, online education is here to stay, both in the synchronous and asynchronous form, और वो अच्छा भी है। तो जैसा कि बानी ने बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो हमको ऑनलाइन आसानी से हम उसको सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि टीचर स्कूल में सिर्फ एक किताब को कथा की तरह बाँच रहे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति ऑनलाइन भी सीख सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको सामने से ही, अगर टीचर के समीप बैठ करके, उपनिषद जिसको बोलते हैं कि समीप बैठ करके जो डायलॉग के थ्रू, एक डायरेक्टिक मेथड के थ्रू आता है, वो क्लासरूम में ही हो सकता है। इसलिए क्लासरूम कहीं जाने नहीं वाले, ऑनलाइन कहीं जाने नहीं वाला। अब इन दोनों के बीच में हमको एक सामंजस्य करना है कि कौन से ऐसे विषय हैं जो कि ऑनलाइन बेहतर होंगे और कौन से ऐसे विषय हैं जिसके लिए हमें आमने सामने बैठना होगा। हमें ये जानना चाहिए कि सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें विमुक्त कर दे, जो हमें स्वतंत्र कर दे, और वाणी और उसके बाद वाणी को बोलना, ये दोनों, इस दोनों की जब हमको स्वतंत्रता दे देती है वही विद्या होती है। और ये विद्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगी। और इसके लिए पहले वाले क्वेश्चन को भी आपके मिला करके हमें लगता है एक थोड़ा सामाजिक परिवर्तन भी चाहिए। जैसे जब मैं 12वीं में आया था तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, इंजीनियरिंग या मेडिसिन, बिकॉज उस दोनों के अलावा मेरे पिताजी ने बोला कोई तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे जन्म के समय ही निर्णय हो गया था कि इसको इंजीनियर बनाना है। 10:50 पे मैं पैदा हुआ, 10:51 पे मेरे पिताजी ने ये निर्णय ले लिया था कि मेरे को इंजीनियर बनाना है। मैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहता था। उस समय बिग बैंग थियरी सीरीज नहीं आई थी, नोबडी न्यू व्हाट थ्योरेटिकल फिजिक्स इज एंड कि ये होता क्या है। बट नाउ look at the online education. Because of things being online, आप कितनी सारी चीज़ें जानते हैं, आपके सामने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का पता भी आपको लग जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता ऑनलाइन और क्लासरूम को मिला करके मिल सकती है, वो इनमें से केवल एक से नहीं मिल सकती, इसलिए दोनों साथ में चलेंगे।
Definitely classroom. I mean, of course, I'm more old-fashioned kind of a person. So I feel, because again, as a counselor by profession, I feel education, academics is very important, but all-around development can happen when you are surrounded by everybody. You know, I remember when I was growing up, giving an example, मेरी मॉम मेरी टीचर के साथ अगर मैं घर में पढ़ाई नहीं कर रही थी, मेरी टीचर को बताती थी, और टीचर मुझसे पूछती थी कि तूने होमवर्क किया या नहीं किया. और मेरी प्रिंसिपल, like you mentioned, my father wanted me to go as BCom, you know, do BCom, do MBA, because मेरे डैड ने किया था, मेरे भाई ने किया था, और मैं भी करना चाहती हूँ. And my principal said, वो मैथ्स तो कर नहीं सकती, तुम उसको BCom क्या करवा रहे हो, you know. Put her in sociology, put her in masters in social work, because that's what her line is. And I think those kind of कि हर एक बच्चे में, जैसे again sir ने कहा था, one cap does not fit all. That can happen when the students are together. You know, उन्होंने मस्ती करनी है. They want to talk about what happened at home. They want to talk about, they want to understand what is happening. They want to discuss. And I think for that classroom setting, where the teacher can have great experience, teaching experience, you know, attitude, कि भैया पढ़ना है, मस्ती करनी है, सीखना है. Because again, like what sir said, sir ने हिंदी में बोला था, but मैं इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकती हूँ. मेरे को लगता है कि हमारे को एक concept जो मैं बहुत personally feel करती हूँ is literacy and education. I find there is a difference between that. Literacy, yes, हम online पढ़ सकते हैं, हम school जाके पढ़ सकते हैं. टीचर बोल सकती है ओपन टू पेज 23 हिस्ट्री का, अकबर ये था, वो सीख सकते हैं. और एक होता है एडुकेशन, वेयर वी अंडरस्टैंड कि अगर कुछ हुआ है, क्यों हुआ है. एंड अगर हम एक एम्बुलेंस को देख रहे हैं, रोड पे चल रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड साइड पे क्यों होना है, और होना है. जस्ट बिकॉज सामने वाला नहीं हो रहा, मैं भी नहीं होऊंगा, तो ये दैट कैन नॉट बी. एंड आई थिंक दैट्स वेयर ग्रुप लर्निंग, where the parents, schools, students, headmaster, education system, everybody comes around and gives that kind of support to the student, so that when he or she grows up, that's where he and she will grow up into be a responsible human being. And that's why I feel the schools would be very, very important, classroom teachers. I want to add one thing here, because she made a very important point. And you know that there is a lot of discussion that students have within themselves. एक चीज़ हम शिक्षकों को भी मान लेनी चाहिए कि सरस्वती मात्र इस दिशा से उस दिशा में नहीं जाती है. बहुत सारा ज्ञान जो है वो स्टूडेंट्स के पास होता है, और जब वो लोग आपस में बात करते हैं तो भी एंटरप्रेन्योरशिप के सारे आइडियाज़ कहाँ से आए हैं? वो हमारे एजुकेट करने से नहीं आए हैं. वो 4-5 लोग मिलकर के बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई दूसरे संकाय का है, कोई किसी और संकाय का है, और अनायास ही उनके आपस की बातचीत से ही कोई ना कोई आइडिया निकल जाता है. बिल्कुल. एंड देयरफॉर classrooms are certainly here to stay. सर ने यही कहा था कि अपने स्पीच में भी वो यही बता रहे थे, जब हर आदमी को आप एक साथ और एक ही तरह से नहीं नाप सकते, और कई बारी स्टूडेंट्स के पास फैकल्टी से ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होते हैं. एक सवाल लखनऊ से हमारे फेसबुक पर आया था, और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है. क्या भारत की एजुकेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर नहीं जा पा रही है क्योंकि बहुत महंगी है? बहुत महंगा है पढ़ाई हमारे यहाँ पर. At least personally, having been through the education system, there is, and I'm coming from a public school, I'm from an army background, so I've always studied in a services school, so I'm very proud of the learning that I got, and it wasn't really expensive. So now, of course, there are private schools that, you know, we are going to. So I don't think, when I compare higher education, I think US वगैरह की much more expensive है. But a lot of Indians aspire, so why are we comparing from a free structure? I think the comparison should be more in terms of quality, equitable access, and the fact that we are able to create, online universities or virtual universities, and what we are trying to do with NEP, give credits to the students who are actually, focusing on skills. Yep. If we focus on skills, then the purpose of education is going to be solved. If we focus on degrees or the fact that we are going to go to the most expensive universities in the world, I don't think that really solves the problem. And innovation will come from those who are seeing a challenge and a problem.
Innovation is not going to come from those who believe that we are in an ideal world and we have no challenges, and you know, world is a great place, so to speak. We have to experience challenges to innovate. And we have to be cognizant of that problem. It has to be a part of our being, or something that we really aspire to change to find a solution. So I think those are the fundamental building blocks of innovation. So we will have to go back to our roots. We will have to be in every small city of India, every small town of India, and then be able to provide more and more opportunities, wherever they are, in the world or in India, I think. Thank you. So प्योर स्टैटिस्टिक्स अगर मैं बताऊं सुशांत, तो अगर मैं IIMs को लूं तो हमारी फीस 1/5 होगी US यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले, जो समकक्ष हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर मैं IITs और NITs को लूं तो 100th होगी. जब मैंने इंजीनियरिंग की REC सूरत कल से, तो जितना आजकल लोग पॉकेट मनी लेते हैं उतना मेरी सेमेस्टर की फ़ीस थी. सेमेस्टर की शायद संभवतः पूरे साल की ही उतनी फ़ीस थी. एंड इफ़ यू लुक एट द स्कूल्स, वी हैव अ वैरायटी ऑफ स्कूल्स. तो मैं 2 तरह के स्कूल्स में पढ़ा. मैं एक जो कानपुर का सबसे महंगा स्कूल जिसको बोला जाता था वहाँ भी पढ़ा, और उसके बाद 11-12 मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया. और मेरे लिए दोनों ही स्कूल उतने ही अच्छे थे. दोनों ने ही मुझे जो भी स्किल सेट्स दिए वो बड़े डिफरेंट थे, और दोनों के ही एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे. एंड देयरफॉर टू से दैट money is a barrier in access is wrong. And I'll tell you the second reason as well. उदाहरण के तौर पे IIM में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पैसे की कमी के कारण एडमिशन ना मिला हो, क्योंकि जिस दिन स्टूडेंट IIM में आता है बैंक्स लाइन लगा करके वहां पे स्टॉल लगाते हैं एजुकेशन लोन देने के लिए. और ये सिर्फ IIMs का नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका यही हाल है. एंड देयरफॉर व्हाट वी हैव टू क्रिएट इज एक्सीलेंस. The moment you create excellence, money automatically follows. Startups में हम क्या देखते हैं, कोई excellent idea है तो उसको फंड करने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं. उसी तरह से जैसे जैसे हम एजुकेशन में एक्सीलेंस बनाते जाएंगे, और जैसे जैसे हम ये समझते जाएंगे कि कोई हमको प्रासंगिक बनने के लिए, वर्ल्ड क्लास बनने के लिए हमेशा बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है. एक और आखिरी उदाहरण, हम आपस में कभी मिलकर के बात नहीं करते हैं. जब मैं इंदौर में एज ए डायरेक्टर आया 3.5 साल पहले, तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस चीज़ का हुआ कि इंदौर एकमात्र सिटी है भारत का जहां IIM IIT दोनों हैं और दोनों मिलके कुछ नहीं कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स वी मेड श्योर दैट वी डिड समथिंग अबाउट इट, और इस मार्च 21 को हमने मिल करके एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट डाला. इसी तरह से अगर हम लोग आपस में मिल लेंगे तो ये जो कोलैबोरेशन है, इससे हम ना सिर्फ वर्ल्ड स्टैंडर्ड पा पाएंगे बल्कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड एट एन अफोर्डेबल प्राइस पा पाएंगे. थैंक यू मच. Exactly. Yes, I totally agree with both my panelists that education is there, हमको लेनी है, you know, and I think एक मे बी मेरा बायसनेस है शायद, आई एम सॉरी फॉर दैट. कहीं ना कहीं हम बहुत महत्व देते हैं या बहुत पावर देते हैं कि यू हैव टू कम फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल्स. आई मीन सर लाइक सेड, यू नो, KVs या गवर्नमेंट स्कूल्स, इट अ लॉट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं और आप कितना आगे आना चाहते हैं. वी हैव सो मेनी यू नो एग्जाम्पल्स. Fisherman's son becoming a president, chai wala becoming a prime minister, and so on. So education, I think, is there. We need to go and take it. A student and a parent and a teacher needs to understand that they can be from a very high-ended schools. I remember we work with programs, we do intercultural programs. We have gone to high-ended schools. And the principal was so narrow-minded. She says, नहीं, मुझे सिर्फ 90% चाहिए, एडुकेशन चाहिए, मुझे इनको आगे IITs और IIMs भेजना है, उनको ये programs distract कर देंगे, you know. And then we have had schools which are from very rural backgrounds, whose students, right now, one of the students is studying in the university where Hillary Clinton went on scholarship. क्योंकि उसकी टीचर को फील हुआ था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इस पे बच्चे को आगे जाना है. सो आई फील दैट मोर एंड मोर इफ़ वी कैन हैव दैट माइंड शिफ्ट कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन द इंस्टीट्यूशन एट पर से, और अंदर से वो जो होती है कि भैया पढ़ना है, कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है. इफ़ वी कैन हैव दैट मोटिवेशन, I think we can definitely achieve a lot of things in our lives.
थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे पास वो मोटिवेशन है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मेरे पास कुछ मिनट बाकी हैं, लेकिन जब तक यहाँ पर लाइव ऑडियंस होती है और वहाँ पर सवाल ना हो लोगों के, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कोई भी कॉन्वर्सेशन वो पूरी नहीं होती है। तो आप में से कोई भी लोग अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहे, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोग हमें सुन रहे थे। सो यस मैम, प्लीज वी वुड रिक्वायर अ माइक ओवर देयर, प्लीज। So I'm Archana Mantri. I'm Vice Chancellor Chitkara University, Chandigarh. Hello, Ms. Raj. I have a quick suggestion and a comment. Yes, please. Rather than having a topic of this panel discussion on taking Indian education to global standards, Yes. how about having a topic as using Indian education system to create global standards? Very nice. And Why not? comment from We'll the take that. panelist. Yes. So, would you like to take that, Mani? Yeah, please. Yeah, please, please. ओके सो यूजिंग जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे ने बात की, वो ऑलरेडी हो रहा है। और ना सिर्फ अब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा है, पर ये काफ़ी समय से हो रहा था। इशू पहले ये होता था कि हम दो झमेलों में फंस जाते थे। नंबर वन, हम उसको एज अ प्रॉपर नॉलेज देखते नहीं थे। जब मैंने पीएचडी किया अपना IIM अहमदाबाद से, निगोशिएशन में मेरी पीएचडी है। सो निगोशिएशन में मेरी पीएचडी के लिए मैंने अन्य चीज़ों के अलावा पूरे महाभारत का एनालिसिस किया। और जब महाभारत का एनालिसिस किया तो जो पहला एक व्यक्ति ने पूछा मेरे से, जब मैं अपनी थीसिस को डिफेंड कर रहा था, वो ये था कि आप महाभारत को इतिहास मानते हैं कि मिथक, इज इट हिस्ट्री और मिथोलॉजी? एंड आई सेड यही झमेले में मुझे नहीं पढ़ना है, मैं उसको इतिहास मानता हूँ या मिथक, ये मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है। द पॉइंट इज देयर इज सो मच दैट कैन बी लर्न फ्रॉम द महाभारत एंड आई वांट टू ब्रिंग दैट into my PhD. And the second thing is it worthwhile reading? हम लोग उस समय बोलते थे कि ये worthwhile नहीं है। अभी पूरी पृथ्वी पे लीडरशिप थ्रू लिटरेचर करके कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी अभी ESG की बात कर रही है। पूरी पृथ्वी अभी SDGs की बात कर रही है, 17 SDGs की बात हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में आरंभ से ही उनकी बात करी जा रही है। मैं आज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1500 साल पहले अगर हम एक विचार को माने, दो तरह की विचारधाराएं हैं, पर उसीलिए फिर मैं उस झमेले में भी नहीं पढ़ूंगा कि वेद कब लिखे गए थे या कब आए। लेकिन अगर हम वेद में ही देखें तो जहां बोला गया है द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, तो जो ESG की और सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है वो पहले से थी। नाउ ओरिजिनल वर्क इज हैपनिंग। अभी तक हम ये करते थे कि कोई और बोलता था तो हम बोलते थे अरे ये हमारे पुस्तकों में पहले से ही लिखा है, इससे काम नहीं चलेगा। अब हम ओरिजिनल वर्क करके ले जा रहे हैं, नए सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं, नए थियरीज क्रिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये लीजिए, ये हमारी अब ओरिजिनल थियरी है जो भारतीय शास्त्रों से ही भारत के द्वारा विश्व के लिए आ रही है। अब ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा है। जी, थैंक यू सो मच। Bani, you wanted to answer that, right? Quickly, if we can. I absolutely concur and say that, you know, this is already happening. I think my only take on technology would be that we have to adopt technologies that are actually encouraging that kind of, you know, innovation on global standards. Because if we are not connected to the world and if we are too inward looking, that's also not the best place for India to be. So find the balance. And I think you are the leaders. You are, as higher education institutions, you are the ones who will have to develop that thinking, because the future skill will require us to collaborate, work in teamwork, and also be able to work with global standards. So we will definitely create. So सवाल तो हम और भी लेना चाहते थे, लेकिन क्या है कि मेरे पीछे पोडियम पे वो आ गई हैं, तो हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। बट आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमें सुनने के लिए, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.